آج کا ویلاگ کسی سیاست، کسی بیان بازی یا کسی معمولی خبر پر نہیں بلکہ 4 معصوم بچوں کے جنازوں کے بارے میں ہے، 4 خاندانوں کے ارمانوں پر ہے، 4 ان غنچوں پر ہے جو بن کھلے ہی مرجھا گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمر فاروق آفیشیل۔ آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، آپ ہمیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہ ویلاگ میں بنا رہا ہوں۔ پیرنٹ ہونے کے ناطے، والد ہونے کے ناطے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جن والدین کے اوپر یہ سانحہ گزرا ہے کہ لٹل سکالرز جو ایک نجی سکول ہے ڈیرہ غازی خان میں، وہاں پہ کلاس میں بچے درس و تدریس میں مشغول تھے اور اس کی چھت گر گئی، جس کی وجہ سے 4 معصوم بچے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ 4 معصوم بچے جن کی ماؤں نے صبح اٹھ کے انہیں تیار کیا ہوگا، ان کو اسکول کے لیے بھیجا ہوگا، وہ بچے جو حصول علم کے لیے اسکول گئے تھے اور پھر اچانک اسکول ٹائمنگ ابھی ختم نہیں ہوئی کہ پورے شہر میں کوہرام برپا ہو گیا، والدین کو اطلاع ہو گئی۔ اور میری ناظرین ڈیرہ غازی خان میں کچھ والدین سے بات ہوئی ہے جن کے بچے اس اسکول میں زیر تعلیم ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ خبر آئی کہ اس اسکول میں، لٹل سکالرز اسکول میں یہ حادثہ ہو گیا ہے اور کچھ بچے جو ہیں وہ ملبے تلے دب گئے ہیں، کچھ کی جو ہے وہ ہلاکتوں کی تصدیق ہو رہی ہے، تو ایک افراتفری کا عالم تھا۔ آپ خود سوچیں کہ والدین جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے، ان ماؤں کی کیا حالت تھی، ان جو والد ہیں ان کی کیا حالت تھی، ان فیملیز کی اس وقت کیا حالت ہوئی، کہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا جو بچہ ہے یا اس کی جو بچی ہے وہ زندہ ہے یا اس سانے میں شہید ہو گیا بچہ۔ تو مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کن الفاظ میں ان والدین کو پرسہ دوں، کون سے الفاظ ہوں جس میں یہ ویلاگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ سانحہ اتنا بڑا ہے، واقعہ اتنا بڑا ہے۔ یہ صرف ایک اینٹوں کی چھت نہیں گری، صرف ایک ملبے کے نیچے جو ہیں وہ کنکریٹ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ وہاں پہ کئی ماں باپ کے خواب دفن ہو گئے ہیں۔ 4 معصوم بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، 16 بچے زخمی ہیں، جن میں سے 2 کی حالت کچھ تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور 2 اساتذہ بھی زخمی ہیں۔ اور ناظرین، سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک حادثہ نہیں ہے، یہ قتل ہے، قتل، جی ہاں، یہ مرڈر ہے، یہ قتل ہے جو جعلی وٹنس سرٹیفکیٹ دینے کی وجہ سے قتل ہوا، یہ قتل ہے جو رشوت کی وجہ سے قتل ہوا، یہ قتل ہے جو غفلت کی وجہ سے قتل ہوئے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس موجودہ گلے سڑے نظام کی وجہ سے قتل ہے۔ ایسا نظام، ایسا بوسیدہ نظام جس میں انسان سے زیادہ فائل کی اہمیت ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ایک خستہ حال، پرانی اور کمزور عمارت میں بچوں کو پڑھانے کی اجازت کس نے دی؟ کس نے اسے فٹ قرار دیا؟ کس افسر نے اس عمارت کو کہا کہ یہ اس قابل ہے کہ یہاں پہ اسکول کھولا جا سکتا ہے، درس و تدریس کا کام کیا جا سکتا ہے؟ کس بلڈنگ انسپیکٹر نے آنکھیں بند کی اور کیوں آنکھیں بند کی؟ کس نے رشوت لے کر اس کی فائلوں پر، اس کی منظوری پر دستخط کیے؟ اور اب اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ ناظرین، اطلاعات یہ بتا رہی ہے کہ اسکول کی عمارت کئی دہائیوں پرانی تھی، باہر سے صرف رنگ و روغن کیا گیا، فرنٹ خوبصورت بنایا گیا، مگر اندر کا ڈھانچہ کھوکھلا تھا،
इस तरह ही अंदर का ढांचा खोखला था जिस तरह इस निजाम का ढांचा खोखला हो चुका है। नाज़रीन, स्कूल की तौसीफ बगैर नक्शा मंजूर करवाई की गई और इसकी जो छत जो गिरी है, इस छत के ऊपर तामीराती सामान रखा गया जबकि नीचे मासूम बच्चे क्लासेस ले रहे थे। नाज़रीन, इमरजेंसी एग्जिट तक मौजूद नहीं था। अगर ये सब सच है तो फिर ये गफलत नहीं, ये मुजरमाना गफलत है। और हम समझते हैं कि सिर्फ स्कूल मालकान, स्कूल इंतजामिया, बिल्डिंग मालकान के ऊपर ही नहीं, तमाम मुतलका सरकारी अहलकारों के ऊपर भी कत्ल की FIR होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ एक कमजोर FIR दर्ज होगी, थोड़े दिन शोर होगा मचेगा, बड़े बड़े अफसर और सियासतदान इस मामले पर अपने बयानात देंगे, अवाम को गम गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करेंगे, टाइम गेन किया जाएगा और उसके बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। क्योंकि ये एलीट का मसला तो नहीं है, ये अशराफिया का मसला तो नहीं है, ये तो मुल्क के गरीब अवाम का या जो मिडिल क्लास है उनका मसला है। तो मिडिल क्लास के मसाइल हल करने के लिए टाइम किसके पास है? जो गरीब है, जो खते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, उनके मसाइल को हल करने का टाइम किसके पास है? नाजरीन, अब जरा हम इन इदारों का नाम भी ले लेते हैं जो हर साने के बाद सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं और बस दैट्स इट। कि भाई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ था, बिल्डिंग डिपार्टमेंट कहाँ था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ थी, सिविल डिफेंस कहाँ था? क्या इन सब ने अपनी फाइलों में सब ठीक है लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी? दोस्तों, पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, पाकिस्तान स्कूल सेफ्टी फ्रेमवर्क मौजूद है जिसकी तैयारी में यूनिसेफ और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी रहनुमाई ली गई है। इस तरह से बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है, फायर सेफ्टी रूल्स भी मौजूद हैं। नाज़रीन, कानून ये कहता है कि हर स्कूल में स्ट्रक्चरल सेफ्टी चेक और इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म, फायर ड्रिल और तरबियत याफ्ता अमला लाजमी होना चाहिए। स्कूल की फिटनेस, उसकी बिल्डिंग, उसकी जो है वो बिल्डिंग, इवन कानून तो ये तक कहता है कि बिल्डिंग हवादार है कि नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन का निजाम है कि नहीं है, हाइजीनिकली फिट है कि नहीं है, वहां पे सीवरेज का निजाम सही है कि नहीं है। लेकिन के आगे बस बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप जानते हैं कि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में कानून सिर्फ गरीब पर लागू होता है। असर रसूख वाले स्कूल, बासर मालकान, रिश्वतखोर अफसरान, ये सब मिलकर बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगा देते हैं। कागजों में सब कुछ मुकम्मल होता है मगर जमीन पर मौत खड़ी हुई होती है। मैं हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि पूरे पंजाब के निजी और सरकारी स्कूलों का हंगामी सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, तमाम गैर महफूज इमारतों को फौरी तौर पर बंद किया जाए, जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं और स्कूल मालकान को और मुतलका सरकारी एहलकारों को सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि फौजदारी कार्रवाई का सामना भी करना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि PSSF को पॉलिसी नहीं, लाजमी कानून बनाया जाए। नाजरीन, याद रखें, जब तक किसी बड़े अफसर, किसी बाअसर शख्सियत या किसी स्कूल माफिया को सजा नहीं मिलेगी, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता ऐसे जनाजे उठते रहेंगे। आज 4 बच्चे गए हैं, कल खुदा ना करे किसी शहर में यही सानहा दोबारा होगा, फिर 12 होगा। नाजरीन, मैं ये कहता हूं कि ये वक्त खामोश रहने का नहीं है, ये वक्त सवाल पूछने का है, ये आवाज उठाने का है, ये अपना हक लेने का है। क्योंकि आज अगर हम खामोश रहे तो कल हमारे अपने बच्चे भी इसी निजाम की बेहिसी का शिकार हो सकते हैं। नाजरीन, मैं एक बात अब करने लगा हूं, वो बात थोड़ी तलख है, कड़वी है, लेकिन बात आप बताएं कि वो बात किस हद तक सच है। मैं ये समझता हूं कि इस तरह के सानेहात इस वजह से जन्म लेते हैं क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते। देखिएगा, ये सानिया गुजरा है ना, आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने ये खबर देखी है,
मेरे चैनल के तवज्जुह से देख रहे हैं या बहुत सारे चैनल्स पर, अखबारात में, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर आप ये खबर देखेंगे, आप ये खबर देखेंगे, चंद लम्हों के लिए अफसोस का इजहार करेंगे और बस इसलिए कि ये आग आपके घर तक नहीं पहुंची, इसलिए कि खुदा न खास्ता आपके आंगन का कोई फूल जो है वो दुनिया से रुखसत नहीं हो गया, इसलिए कि आपका कोई बच्चा शहीद नहीं हुआ, इसलिए कि साहने में आपका कोई बच्चा जाँ भाग नहीं हुआ। अगर ये आप लोग इतने बेहिस हो गए हैं तो फिर फिक्र ना करें, तो खुदा न खास्ता ये आग जो है वो कभी आपके घर तक भी पहुंच सकती है। खुदारा इन बच्चों को अपना बच्चा समझें और ऐसी पेशबंदी करें कि आइंदा कभी ऐसा सानेहा वकूअ पजीर ना हो। नाजरीन, वो उसी वक्त हो सकता है जब आप सब ये तहैया कर लें कि आपने हर नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करनी है। आप कम से कम ये तो कर ही सकते हैं ना कि अगर ये वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। इस तरह और भी लोग जो हैं इस साने के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज में लाएं। आइंदा सब लोगों को ये कान हो जाने चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब पाकिस्तान में एक ऐसी सोसाइटी जन्म ले चुकी है जो मेरिट की बात करती है, जो हक की बात करती है। हर बंदे को ये पता होना चाहिए, वो सरकारी अहलकार हो या प्राइवेट कोई बंदा हो, प्राइवेट बिजनेसमैन हो, प्राइवेट किसी स्कूल का मालिक हो, कोई किसी भी कारोबारी ग्रुप का कोई हिस्सा हो, उसको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, जैसे कि तरक्की याफ्ता ममालिक में है, उसको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की, अगर मैं जो काम कर रहा हूं उसके पैरामीटर्स को मैंने पूरा ना किया, तो कल को जो है वो कानून का शिकंजा जो है वो मेरी गर्दन के गिर्द कसा जाएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बाशऊर हैं और वो हर गलती, हर कोताही और हर गफलत को वो टॉप ट्रेंड बनाते हैं, और जो बुरा बंदा है, जो खताकार है, जो मुजरम है, उसके गिरबान पे अपना हाथ डालते हैं। अगर आप ये कर लें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता होते होते जो इस तरह के वाकयात हैं उनमें इंशाल्लाह अगर वो खत्म नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा कम ही वाकया हो जाएगी। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती है कि अगर आपकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे जो देखने वाले नाजरीन हैं और पाकिस्तान की आवाम का एक अमूमी रवैया जो है कि अगर आपके सामने कोई फजूल बेहुदा मवाद के ऊपर जो है कोई वीडियो आ जाएगी तो उसके जो फॉलोअर्स हैं या उसको देखने वाले जो हैं वो लाखों में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर एक इतना बड़ा सानिया हो गया है, उन बच्चों को इंसाफ दिलाना है, तो फिर आप जो है वो सरफ नजर करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप भी उन्हीं नाजरीन में शामिल हैं तो फिर इस तरह के सानेहात के जिम्मेदार आप भी हैं। अब इसमें एक बच्ची जो आपको मैं बताता चलूं, मेरी डेरा गाजी खां में बात हुई है, एक बच्ची जो इसमें शहीद हुई है वो वालदैन की अकलौती औलाद थी और शादी के 18 साल बाद वो पैदा हुई और अब वो स्कूल में पढ़ रही थी। आप जरा अंदाजा लगाएं कि उसके वालदैन पे क्या गुजरी होगी। और बाकी भी बच्चे, जाहिर है कि अपने वालदैन को तो हर बच्चा प्यारा होता है। तो ये बच्चे तो चले गए इस दुनिया से, मासूम बच्चे थे, वो तो थे ही जन्नत के फूल। वो तो इंशाल्लाह ताला अल अजीज, अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी और रहम से वो बच्चे तो जो है वो जन्नत के बागों की सैर कर रहे होंगे और जन्नत में आला मकाम पर पहुंच गए होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन शहीद बच्चों के वालदैन को भी, उनकी फैमिलीज को भी सब्र जमील अता करे, उनके लिए आसानियां अता करे। जो जख्मी बच्चे हैं उनको अल्लाह ताला मुकम्मल सेहजाबी, जल्द सेहजाबी, स्पीडी रिकवरी और शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए। तो आखिर में नाजरीन आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप भी ये समझते हैं कि इस सहने के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए तो इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आवाज बुलंद करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह ताला आपका, हम सब का और हम सब के बच्चों का, फैमिलीज का हामी और नासिर हो। नाजरीन आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।